Hello students, in this video we will study about gold leaf electroscope. This is the topic that you will have to study in class 8 physics, and this is a very easy topic which seems to be tough लेकिन है बिल्कुल easy. We'll see why we are using this gold leaf electroscope, what exactly it is, why we are using it. So gold leaf electroscope, what it is, we have already studied that there are charged bodies. So gold leaf electroscope is a instrument that we use to find out whether the body is charged or not. चार्ज मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है. एक तो ये चीज इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Then the another thing that we can find out through the electroscope is which kind of charge it is, whether it is a positive charge or it is a negative charge, whether the body is charged or not. Or second thing, gold leaf electroscope can be used to find out whether the body is positively charged or negatively charged. वो चार्ज है कि नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. ये दो चीजें को फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द gold leaf electroscope. Now we'll see the construction of gold leaf electroscope. इसमें होता क्या है? As you can see here, we have a wooden base on which a glass jar is there. This one is a glass jar. As you can see, this one is a glass jar. And in this glass jar, if you see the above, this one, this is a shellac seal. Why we use it? Why we use this shellac seal? This is basically a insulator which keeps away this brass strip from the glass so that no leakage of charges will be there. क्योंकि ये एक इंसुलेटर है तो ये चार्जेस को इधर उधर लीक नहीं होने देगा. That's why we are using this shellac seal. Fine. So this was one part of it, shellac seal. I have told you why we are using it. Then the next thing that we use here, you can see there is a brass rod. This is a brass rod. Fine. This one, the hole passing through the shellac seal. This is a brass rod, and on the top of it we have a brass cap. नीचे क्या है? नीचे we have a brass strip, and in front of it, parallel to it, we have a gold leaf. This is where it has got its name. Name जो इसका है gold leaf electroscope, वो यहाँ से आया है because we are using a gold leaf here. Fine. So ये gold की जो strip है, gold की strip we are using here. Fine. So हमने क्या किया? Let's see it again. We have taken a brass rod. On the top of it, we have a brass cap, and on the bottom part of it, we have divided into two parts. One side it's a brass tip, and on the other side there is a gold leaf. Fine. Then we have tin foil around it. Tin foil हम क्यों use कर रहे हैं? These foils are parallel to the gold leaf. ये जो foils है, ये gold leaf के parallel है, and these foils are earth. Basically, they are being fixed in order to avoid the leakage of any kind of charge, so that whatsoever charge is there on the gold leaf, it will stay on the gold leaf. Gold leaf पर जो भी charge है वो ज्यादा समय के लिए उसी पर रहे, इसी के लिए हमने ये tin foils को रखा है, so that no charge will be leaked from the gold leaf. Fine. So that was the construction. I hope you have understood. Now comes to the working. How does it work? Let's see. We have two things here. First we will see this one. So what is happening? We have taken a glass rod. अब glass rod को किसके साथ रब करते हैं हम? Silk cloth के साथ. Fine. So जब glass rod को, this is your glass rod, इसको हमने सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया, so it will be positively charged. Fine. So first thing that we have to do is find out whether the rod is charged or not. What we will do, we'll bring this rod near the cap. Brass cap जो है उसको touch करेगी. When this will
व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे खाली स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तभी वो पॉजिटिवली चार्ज है। सो जब इसको ये टच करेगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनसाइड हियर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ के जो पॉजिटिव है मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ पे, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपर साइड में मूव करेंगे, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा दोनों। फाइन। अब यू नो दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो क्या होगा, ये इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, जो दो स्ट्रिप्स हैं, ये आपकी दो स्ट्रिप्स हैं। फाइन, दिस वन इज ब्रास एंड दिस वन इज गोल्ड। सो गोल्ड वाली, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, फाइन, सो दिस विल मूव फ्रॉम टू दिस साइड एंड दिस साइड, सो दे विल डाइवर्ज, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। फाइन, सो इससे अगर ये मूव होती है, इसकी मूवमेंट आपको दिखती है, दैट मीन्स दिस इज चार्ज्ड। फाइन, सो दैट वाज द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी। नाउ वी विल सी द ऑपोजिट, एबोनाइट रोड, ये है आपकी एबोनाइट रोड, और नाइट में क्या दिखती है आपको, बिल्ली, तो इसको हम किससे रब करते हैं, कैट फर से। फाइन, सो एबोनाइट को, जब एबोनाइट की रोड को हम कैट फर से या कैट स्किन से हम रैप करते हैं तो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर इट, इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। फाइन, अब ये क्या करेगा, इसके पास ज्यादा है, ठीक है ना, एक टोकरी में ज्यादा भरे हुए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, ले तू भी ले ले, इसने इलेक्ट्रॉन्स ब्रास को दे दिए। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वो नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फाइन, सो ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मतलब रिपेल, अगेन गोल्ड इधर जाएगा, ब्रास इधर जाएगा। सो अगर ये मूवमेंट होती है दैट मीन्स द रॉड इज चार्ज। अभी तक हम ये पता कर रहे हैं कि रॉड चार्ज है कि नहीं है, तो यानी कि हमारा ये जो ब्रास स्ट्रिप्स हैं, अगर ये एक दूसरे से दूर या पास मूव करती हैं, इनकी मूवमेंट होती है, तो दैट प्रूव्स दैट कि जो बॉडी हमने यूज की है दैट इज चार्ज्ड। फाइन, ये हो गया इसका एक पार्ट। अब हमारे पास दूसरा पार्ट, हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों चार्ज्ड है, फाइन, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, पर कोई ना कोई चार्ज तो जरूर है, क्योंकि ये जो ब्रास और गोल्ड की है वो मूव कर रही है। फाइन, strips. If a body on touching the disc of a gold leaf of electroscope makes it leaf diverge, then the body is charged. मतलब ये जो है, अगर ये डाइवर्ज होती है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी स्ट्रिप, ये इस डायरेक्शन में, तो इससे प्रूव होता है कि ये बॉडी चार्ज्ड है। फाइन, अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये तो हमें नहीं पता चल रहा। अब ये कैसे पता चलेगा, द सेम मेथड वी विल यूज हियर। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, अब कौन सा चार्ज है वो पता करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप या तो ग्लास रोड को यूज कर सकते हो या एबोनाइट को। मान लिया एक पहले एग्जांपल में हम एबोनाइट यूज करते हैं, रोड को यूज करते हैं। हमने क्या किया, एबोनाइट रोड को लेके आए, वी टच द कैप एंड यू नो दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज। हमें पता है कि एबोनाइट जो रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज होता ही होता है, सो दैट मीन्स डाइवर्जन विल बी देयर, ये डाइवर्ज होगी। फाइन, सो वी नो दैट द स्ट्रिप, गोल्ड जो स्ट्रिप है, गोल्ड स्ट्रिप इज नेगेटिवली चार्ज्ड, वो है नेगेटिवली चार्ज्ड। फाइन, नेगेटिवली चार्ज्ड। फाइन, अब जिस बॉडी को आपको फाइंड आउट करना है उसको आप इसके पास लेके आओगे, इसको हटा दोगे, इसको हटा दिया आपने, फिर वो दूसरी जो जिस भी का भी चार्ज आपने देखना है कि कैसा चार्ज है, उसको आप लेके आओगे, इसको टच करोगे। अब आता है पॉइंट, ठीक है। अब अगर तो है जो नई बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये नेगेटिव है तो ये अगेन और ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। लेट्स रीड इट अगेन। हमने क्या कहा, हमने पहले ये एबोनाइट रॉड को इससे टच कराया, ये नेगेटिव था, ये डाइवर्ज हुए। अब मान लिया ये जो नए वाली बॉडी है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगा,
ये इसको जब टच करेगी और ज्यादा नेगेटिव इसके ऊपर आएगा, ये और ज्यादा डाइवर्ट होंगी। अगर ये और ज्यादा अपार्ट जाती हैं, डाइवर्ज होती हैं, दैट मीन्स जो न्यू बॉडी है, न्यू रॉड है या न्यू ऑब्जेक्ट है, वो है नेगेटिव चार्ज की। ठीक है ना। सो अगर और ज्यादा डाइवर्ज हुआ, मान लिया ये सब है पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑलरेडी ये डाइवर्ज हो रखा था, हमें पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ अगर ये है पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, ये जो पॉजिटिव अपोजिट टू दैट, सो ये इनको क्या होगा, दे विल कम नियर टू ईच अदर, दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। फाइन, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज में दे विल मूव समवट नियर टू ईच अदर, क्योंकि ये नेगेटिव थोड़ा कम हो जाएगा पॉजिटिव से। मान लीजिए ये 3 नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। तो अगर ये कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो मतलब जो न्यू ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। सो ऐसे हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, यूजिंग एबोनाइट रोड। फाइन, एबोनाइट रॉड से हमने पहले उसको नेगेटिव चार्ज किया, फिर अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो अगेन ये डाइवर्ज होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कन्वर्ज होंगे।